Hello children, I am Poonam Bagga and today we are going to start a new chapter, chapter 3, pair of linear equations in two variables. We all are familiar with equations. We know that an equation has an equal to sign in between. This is a special feature for an equation. And equations are used to show equality between two quantities. Whenever we compare two quantities and if they are equal, we use an equation to represent it. For example, if it is said the height of A is same as height of B, then this can be represented in the form of an equation height of A equal to height of B. If it is said I have twice the money that you have, again it can be represented, this situation can be represented in this form of an equation, my money equal to 2 into your money. Similarly, we have algebraic equations where we have constants, variables, and all these are combined with mathematical operations such as plus, minus, multiply and divide, as you can see. And when we combine variables, constants and mathematical operations, we get one algebraic expression. And when we equate one expression equal to the other expression, then we get an algebraic equation. These are examples. आप देखिए ये एक expression हो गया और ये एक और expression हो गया और दोनों को equate किया हुआ है, इसलिए ये है एक algebraic equation. इसी तरह से ये एक expression है और ये equate किया हुआ है एक constant के, तो ये भी एक equation है. Similarly, this is another equation. Now we are also familiar with linear equations in one variable. हमने ये पढ़ा है पिछली क्लास में और आप जानते हैं कि लीनियर वर्ड का क्या मतलब होता है. ऐसे इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर 1 हो. इक्वेशंस इन वन वेरिएबल with the highest power of variable as 1. Let us take some examples. If it is said, if my mother gives me rupees 5 more, I would have rupees 20. अब यहाँ पर how much money do I have, it is unknown. ये हमें नहीं पता है. तो let us assume it to be a variable say x. हम अपने मन से उसे x मान लेते हैं. और अब हमें क्या कहा गया है कि अगर मदर 5 रुपीज़ और दे दें, प्लस 5 कर दें, then it will be equal to rupees 20. This is an equation in one variable. Got it? Similarly, if it is said 5 times my sister's age is 25. इसको भी हम एक equation में express कर सकते हैं. 5 times, times means multiply. So 5 times my sister's age. If we assume this sister's age to be say x, तो 5 times x will be 5x and it is equal to 25. This is another equation. So we can have similarly many equations. If we write 7z plus 4 equal to 11, it is another equation. If it is written 2x plus 3 equal to 5 minus 4x, this is another equation. All these are equations in one variable, remember, and these are linear equations क्योंकि इन सभी में जो variable है उसकी highest power कितनी है, 1 है, आप देख सकते हैं. Also we can solve these equations and find the value of the variable. जैसे यहाँ पर आप x की value find out कर सकते हैं. It will be 20 minus 5 and it will be equal to 15. तो ये 15 हो गया इस equation का solution. ये solution क्यों कहलाता है? अगर हम x की जगह ये 15 replace करें तो आप देखिए 15 plus 5 हमें क्या मिल रहा है, 20 मिल गया जो कि RHS है. LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं, इसलिए 15 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा. इफ़ वी टेक x इक्वल टू 17, तो 17 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 22. इट इज़ नॉट इक्वल टू 20 जो RHS है, तो 17 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है. तो x की वो वैल्यू जो LHS और RHS को इक्वल बना दे वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा. सिमिलरली हियर वी कैन सॉल्व इट. व्हाट विल बी इट्स वैल्यू? You can see x will be equal to 25 upon 5 equal to 5. तो x equal to 5 हो गया इस equation का solution. Now the question arises that how do we represent these solutions geometrically? तो जब भी हमारे पास linear equations होंगी one variable में, तो हम इनके solution को represent करते हैं number line पे.
So here we have one number line in which we have 0 in the middle, then positive numbers towards its right, negative towards its left. And see, x is 15 and x is 5. We can easily represent them on this number line. 15, you can see it's here, and x equal to 5, you can locate it here. So in this way, the solutions of linear equations in one variable are represented on a number line. Now we move towards linear equations in two variables. For this, let us take a few examples. Suppose I have 20 more chocolates than my friend has. Now here there are two unknowns. दो चीज़ें unknown है यहाँ, दो बातें कही गई हैं. एक तो number of chocolates that I have and number of chocolates that my friend has. दोनों ही unknown है. If the number of chocolates that I have, suppose it is x, and the number of chocolates my friend has, let it be y, then I have 20 more than my friend. I can represent it in the form of one equation. दोनों में difference है 20 का, so I can write it x minus y equal to 20. So here there are two unknowns and therefore we have taken two variables x and y. It's a common practice to use the symbols x, y or z. But you can take any other alphabet also, it's up to you, it's your own choice. But most commonly we use x, y, z. Okay. So this is an equation. It is a linear equation क्योंकि आप देख रहे हैं variables की highest power कितनी है, 1 है, और two variables आप देख रहे हैं x और y, और equation तो ये है ही क्योंकि बीच में हमारे पास है equal to sign. Similarly, if we say the perimeter of a rectangle is 20 centimeters, again the rectangle is here, so let us take the alphabets L and B to denote length and breadth. We know the perimeter is 2 times length plus breadth. It is equal to 20 here in this case. So this will give us L plus B equal to 10. 20 by 2 it's 10. ये एक और इक्वेशन हो गई किसमें, दो वेरिएबल्स में, और ये भी एक लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल्स में. अब आप ज़रा ये बताइए कि क्या ये भी एक लीनियर इक्वेशन है. There are two variables x and y. Yes, there is an equal to sign, so it is an equation. But is it a linear equation? No, it is not a linear equation because the highest power here is not 1, it is 2. और लीनियर इक्वेशंस में हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1. तो हमारे सभी एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, x plus 5y equal to suppose 6, anything. Every time we will be having the variable as it is. There will be no power visible because its power is 1. So now we proceed towards the general form of a linear equation in two variables. Any equation which can be put in the form ax plus by plus c equal to 0, where a, b and c are real numbers and a and b are not both 0. Remember, they both cannot be 0. Then it is called a linear equation in two variables. ठीक है, इस तरह से जब हम कोई इक्वेशन लिखते हैं तो उसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जहाँ ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स, और ए और बी दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए. तो जैसे अभी हमने लिखी थी एक इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 20, इसको हम अगर कंपेयर करें इससे x माइनस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं. ठीक है, तो आप देखिए पहला एक्सप्रेशन है x का, दूसरा एक्सप्रेशन है y का, और तीसरा एक्सप्रेशन है कांस्टेंट का. और a क्या है, x का कोएफिशिएंट, x के साथ जो नंबर है यहाँ इन दिस केस इट इज़ 1. b है कोएफिशिएंट ऑफ y, हियर अगेन इट इज़ -1, और c हो गया कांस्टेंट विदाउट द वेरिएबल्स, इट इज़ -20 इन दिस केस. ठीक है, एक कंडीशन जो यहाँ इंपॉर्टेंट है, both a and b they cannot be 0, and this condition is often represented by a square plus b square not equal to 0. एक बार कंसिडर करते हैं a square plus b square को. आप देखिए a square की वैल्यू ये हमेशा पॉजिटिव होगी. इफ सपोज वी टेक द वैल्यू ऑफ a एज 5, तो 5 स्क्वायर क्या हो गया, 25. अगर a की वैल्यू है मान लीजिए -5, तो -5 स्क्वायर भी क्या होगा, 25. So in every case it is positive.
सिमिलरली बी स्क्वायर, इट इज़ ऑल्सो अ स्क्वायर फॉर्म ऑफ बी, स्क्वायर हो रहा है तो ये भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये होगा 0 से बड़ा। फिर तो ये 0 के इक्वल नहीं होगा, एज इट इज सेड हियर, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। पर ये 0 कब हो सकता है, ओनली व्हेन बोथ a एंड b आर 0। अगर हम a भी 0 ले लें और b भी 0 ले लें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर दोनों में से कोई एक ही 0 हो और दूसरा 0 ना हो तब भी ये नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। सपोज वी टेक a एज 5 and b as 0, so 5 square plus 0 square, it will be 25 which is not equal to 0। तो ये कंडीशन नॉट इक्वल टू 0 ही रहेगी हर केस में, एक्सेप्ट व्हेन वी टेक बोथ a एंड b as 0। जब दोनों ही 0 होंगे तब इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। तो अगर हम कह रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका दूसरा मीनिंग यही है कि ना तो a इक्वल टू 0 है और ना ही b इक्वल टू 0 है, क्योंकि जब ये दोनों 0 होते तो ये इक्वेशन होल्ड नहीं करती। ये इक्वेशन होल्ड कर रही है, दोनों का स्क्वायर का सम 0 नहीं है, इसका मतलब ना तो a 0 है ना b 0 है। और आप इसको विजुअलाइज कीजिए, अगर a और b दोनों ही 0 हो गए तो x और y दोनों के एक्सप्रेशन 0 हो जाएंगे, तब तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स रह ही नहीं जाएगी, वेरिएबल्स ही नहीं रहेंगे तो फिर इक्वेशन कैसी। इसलिए दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। हाँ, एक बार में एक 0 पॉसिबल है। सपोज वी टेक x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो आप इसको लिख सकते हैं x प्लस 0y प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 0 हो गई, तो आप देखेंगे एक की वैल्यू तो 0 हो सकती है। सिमिलरली इफ वी टेक सपोज y 2y प्लस 6 इक्वल टू 12, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 0x प्लस 2y, तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 2। तो दोनों में से कोई एक 0 हो सकता है पर दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। क्लियर? वी हैव सम एग्जाम्पल्स। दिस इज वन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। एज यू कैन सी, इफ वी कंपेयर इट विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करें तो आप इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो इससे आप a की वैल्यू क्या आ जाएगी, x का कोएफिशिएंट वो 2 हो गया, b की वैल्यू हो गई माइनस 3 और c की वैल्यू हो गई माइनस 7। b है y का कोएफिशिएंट और c है ये कांस्टेंट टर्म जो है माइनस 7। ऐसे ही यहाँ पर आप देखिए वेरिएबल्स हैं p और q, तो आप इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 जो यहाँ है, b की वैल्यू हो गई 4 और c इज अगेन माइनस 7। यहाँ कंपेयर करें तो आप इसको लिख सकते हैं x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। इफ वी टेक इट एज 1x, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 6। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। गॉट इट? नाउ वी डिस्कस अबाउट देयर solution. What is a solution of a linear equation in 2 variables? A solution of a linear equation in 2 variables is a pair. Remember, it is a pair of values, one for x and the other for y, which make the two sides of the equation equal. Suppose we have an equation x plus y equal to 8. ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन होगा एक पेयर ऑफ नंबर्स, जिसमें से फर्स्ट नंबर होगा x की वैल्यू को डिनोट करने के लिए और सेकंड नंबर डिनोट करेगा y की वैल्यू को। सो इफ वी टेक इट एज 2 प्लस 6 वी गेट इट इक्वल टू 8, तो हम x की वैल्यू क्या ले सकते हैं 2 और y की वैल्यू ले सकते हैं 6, तो वो पेयर हो गया 2,6 और ये पेयर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। बिकॉज वेन वी रिप्लेस x बाय 2 एंड y बाय 6 तो हमें सम मिल रहा है 8 और ये इक्वल टू RHS हो गया, जो RHS में 8 है। तो ये पेयर हो गया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो समझे आप कि सॉल्यूशन कैसा होता है, पेयर में होता है जिसमें one value is for x and the other one is for y, and the common practice is that we represent the first number as the value of x और second number is represented as the value of y. ठीक है,
A linear equation in two variables has infinitely many solutions. इसको समझिए आप, जैसे हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 8. अब एक सॉल्यूशन तो हमने ले लिया 2 और 6, क्योंकि दोनों का सम 8 आ रहा है. तो क्या सिर्फ यही एक सॉल्यूशन पॉसिबल है या अदर आंसर्स आर ऑल्सो देयर? यू कैन सी वी कैन टेक इट एज 1,7. 1 प्लस 7 भी तो 8 हो रहा है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका सॉल्यूशन है. सिमिलरली वी कैन हैव 5 and 3. What if I take it as -1 and 9? It is again 8. And we can take it also as -92 and 100. Again their sum will be 8. तो आप देख रहे हैं not only one, there are infinitely many solutions. You can take it in thousands, you can take it in lakhs. Every time you can find two numbers whose sum is equal to 8. ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है. सिमिलरली इफ वी टेक अदर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, देन वी विल बी हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर ईच इक्वेशन. ठीक है, हमें ऐसे बहुत सारे पेयर्स मिल जाएंगे x और y के लिए जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी. देन वी टॉक अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ line on a graph. A linear equation in two variables is represented geometrically by a line. Focus on this word. Whose points make up the collection of solutions of the equation. जब हम कोई इक्वेशन लेते हैं तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, और जब हम उन सॉल्यूशंस को प्लॉट करते हैं ग्राफ पे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, और इसीलिए इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसका ग्राफ कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है. और वो लाइन किससे बन रही है, उस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशंस हैं उन सब का कलेक्शन होता है वो लाइन. एंड सो एवरी सॉल्यूशन एक्स वाई ऑफ द इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट. हर सॉल्यूशन जो उस इक्वेशन का है वो एक पॉइंट होता है उस लाइन पे. एंड कन्वर्सली एवरी पॉइंट ए बी ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग एन इक्वेशन गिव्स अ सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन. और ग्राफ पर जो लाइन पर हर पॉइंट है वो उस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है. वी टेक वन एग्जाम्पल, देन इट विल बी वेरी मच क्लियर. एग्जाम्पल इज वी टेक दिस इक्वेशन x plus 2y इक्वल टू 6. सो लेट अस राइट डाउन इट्स सॉल्यूशंस. इफ वी टेक एज x इक्वल टू 0, x 0 ले लेंगे अगर हम, तो हमें y मिलने वाला है इक्वल टू 6/2, दैट इज 3. ठीक है. एंड इफ वी टेक y एज 0 तो हमें x स्ट्रेट अवे मिल जाएगा 6. सो इफ वी टेक y एज 0, x इज इक्वल टू 6. तो दो पेयर्स क्या हो गए, 0,3 एंड 6,0. Let us now plot these points on a graph paper, and we know that when we have a graph paper we can draw the lines. These are the axes. This is your x axis, x dash, and this is your y axis, y, and let me take it a little bit upwards, y dash. Got it? Let us now mark the points, these 2 points on this graph. 0, 3. Where will be this 0, 3? x coordinate is 0 और y axis पे 3. आपको ये पॉइंट मिलेगा. It is 0,3. And what is the next point? 6,0. So x axis पे तो 6 और y तो 0 है, तो x axis पे 6. It is this point, 6,0. Now if we join these points, what will we get? Let us join. If we start from here, we will get it in this way. This is the straight line which we are getting by joining these 2 points. Got it? We have joined the 2 points and this is the straight line. You can see whenever we will be plotting the points, we will get a straight line in case of a linear equation in 2 variables. Now what we see, let us talk about some other solutions of this particular equation. Let me take the other solution. If we take it as 2, x as 2, x plus 2y is equal to 6. So if we take x as 2 and y also as 2,
then we will again get it equal to 6. You can see 2 plus 4 it's 6. तो 2 2 ये एक और सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का. ठीक है, तो हम देखते हैं क्या ये पॉइंट, ये सॉल्यूशन हमें ग्राफ पर उसी लाइन पे मिल रहा है या नहीं, जो कि इसका एक सॉल्यूशन है. एक और सॉल्यूशन हम सोच के रखते हैं ताकि हम दोनों को एक साथ चेक करें. x plus 2y equal to 6. If I take this as how much? Say 4. Then it will be 2 4s are 8, and what should be this number? -2. -2 plus 8 it's 6. So the other solution is possible -2, 4. हम चेक करते हैं कि क्या ये दोनों भी हमें इसी लाइन पर मिल रहे हैं या नहीं. -2 and 4. Where will it be? -2 4. Oh yes, it is here on this same line. -2, 4. और ये सॉल्यूशन क्या है? 2 2. क्या ये भी इसी पे मिल रहा है हमें? बिल्कुल, देखिए x पर 2, y पर 2. ये पॉइंट ये भी इसी लाइन पर लोकेट हो रहा है. तो हम क्या समझ रहे हैं? Every solution, see here, every solution of the equation is a point on the line representing it. तो हम देख रहे हैं जो भी सॉल्यूशन यहाँ से निकल रहा है वो इसी लाइन पे लोकेट हो रहा है. बात समझ में आई? और अब हम इस पॉइंट की बात करते हैं. ये जो पॉइंट दिख रहा है हमें, दिस इज 4 and 1. क्या ये भी इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है? हम चेक करते हैं. 4 1, x plus 2y is equal to 6. 4 plus 2 into 1, yes it's 6. 6 आ रहा है, तो 4 1 भी इसका एक सॉल्यूशन है. तो आप देखिए कि जो भी हम पॉइंट ले रहे हैं इस लाइन पर वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. एक और पॉइंट लेते हैं. सपोज वी टेक दिस पॉइंट, इट इज 8 and here it is -1. So let us check whether it is a solution or not. हमारी इक्वेशन है x plus 2y equal to 6. अगर हम x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -1 लें तो ये तो 6 ही आ रहा है. बिल्कुल, 8 and -1, it is again a solution of this equation. और वो हमें कहाँ से मिला? इस लाइन से. तो हम क्या देख रहे हैं कि every point on the line is a solution of the equation. दोनों तरफ से बात समझ में आ रही है आपको? अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है तो पहली बात उसका ग्राफ क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन. कौन सी इक्वेशन है ये? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. और इसका ग्राफ बनेगा बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन. और दूसरी बात आप ये देखेंगे, ये जो लाइन बनेगी ये कलेक्शन होगा इसके सभी सॉल्यूशंस का. तो अब हमारा जो भी सॉल्यूशन हम इसका निकालेंगे सॉल्व करके, वो हर सॉल्यूशन उस लाइन पर लोकेट हो सकता है. और इसी का कन्वर्स है कि उस लाइन का हर पॉइंट एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का. आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू. सो नाउ वी टेक द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. अभी तक हम बात कर रहे थे एक सिंगल इक्वेशन की, सिंगल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. अब हम लेंगे पेयर, एक साथ 2 इक्वेशंस. पेयर का मतलब टेकिंग 2 एट अ टाइम. एंड द जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर of linear equations in 2 variables, it is given by a1x plus b1y plus c1 equal to 0. हमें पता है कि जनरल फॉर्म क्या होता है? ax plus by plus c equal to 0. ये जनरल फॉर्म होता है जब हम एक इक्वेशन लेते हैं. अब हम पेयर ले रहे हैं, 2 इक्वेशंस ले रहे हैं, इसलिए हमने कोएफिशिएंट्स को नाम दे दिया a1 b1 c1. ऐसे ही a2x plus b2y plus c2 equal to 0. और ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सभी रियल नंबर्स हैं. और a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 0. इससे क्या मतलब निकल कर आया कि a1 इज़ नॉट 0, b1 इज़ नॉट 0 टुगेदर. दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे. इसी तरह से इससे निकल कर आएगा कि a2 और b2 दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे. इनमें से कोई एक तो 0 हो सकता है पर दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे. और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास. ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स. यहाँ एक चीज़ और है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स इज सेट टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. बिकॉज हियर वी आर टेकिंग 2 इक्वेशंस साइमल्टेनियसली, एक साथ टुगेदर वी आर टेकिंग. तो हम इन्हीं पेयर को कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. तो अगर आप कहीं पढ़ें कि सॉल्व दिस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, तो आपको समझ में आना चाहिए कि साइमल्टेनियस मतलब एक साथ 2 इक्वेशंस हैं. ठीक है, अब ये एग्जाम्पल्स पे आते हैं हम. ये हो गया पहला एग्जाम्पल.
देखिए इसको आप, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। a1 की वैल्यू नज़र आ रही है 2 जो x का कोएफिशिएंट है, b1 की वैल्यू हो रही है यहाँ पर 3 और c1 है आपका -7 एज इज़ विजिबल। ये हो गया आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और यहाँ से आप देख सकते हैं a2 की वैल्यू 9, b2 की वैल्यू आ रही है -2 और c2 की वैल्यू है 8 एज यू कैन सी फ्रॉम हियर। तो ये हो गया एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स 2 हैं, x और y। लीनियर इसलिए है क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 1। गॉट इट। इसी तरह से ये भी एक इक्वेशन है और ये हो गई सेकंड, तो ये एक पेयर हो गया। इसी तरह से एक पेयर इन दोनों इक्वेशंस का हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि x का कोएफिशिएंट 0 है और इसलिए वो दिख नहीं रहा है। ठीक है। नाउ देयर आर 2 इक्वेशंस एंड सो देयर विल बी 2 लाइन्स करस्पॉन्डिंग टू ईच इक्वेशन एंड सो वी टेक ऑन द ग्राफिकल representation of a pair of linear equations in 2 variables. It's graphical representation. We know that the graphical representation of a single linear equation in 2 variables is a straight line. अगर हम एक इक्वेशन की बात करें, सिर्फ एक इक्वेशन की, तो उसका ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन। और क्योंकि अब हम यहाँ पर 2 इक्वेशंस एक साथ ले रहे हैं तो हमारे पास कितनी लाइंस होने वाली हैं, बिल्कुल 2 लाइंस। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 स्ट्रेट लाइंस बोथ कंसिडर्ड टुगेदर। अब हम दोनों को एक साथ कंसिडर करेंगे, अलग अलग नहीं लेना है कि अलग अलग ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं। एक ही ग्राफ पर हम दोनों लाइंस को प्लॉट करेंगे क्योंकि हमारे पास अब एक साथ कितनी इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशंस। एंड गिवन 2 लाइंस इन अ प्लेन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग 3 पॉसिबिलिटीज कैन हैपन। जब हमारे पास 2 लाइंस होंगी तो वो 2 लाइंस किस पोजिशन में होंगी, इसकी 3 पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट, द 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। आप देखिए हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। मान लीजिए ये ग्राफ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 का, और ये ग्राफ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का। तो दोनों का ग्राफ यहाँ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें जब 2 लाइंस होंगी तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें। अगली पॉसिबिलिटी क्या है, द 2 लाइंस आर पैरेलल। वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं, कहीं मिल ही नहीं रही हैं, तो वो दोनों लाइंस पैरेलल भी पॉसिबल हैं। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन की लाइन और ये हो गई सेकंड इक्वेशन की लाइन। याद रखिएगा हम एक साथ 2 इक्वेशंस कंसिडर कर रहे हैं और इसलिए हमारे पास 2 लाइंस हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है वो दोनों इंटरसेक्ट कर सकती हैं, एक पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों पैरेलल हो सकती हैं, या फिर एक पॉसिबिलिटी है कि बोथ द लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। दिस मीन्स वन लाइन ओवरलैप्स द अदर, एक के ऊपर ही दूसरी लाइन भी बन रही है। इस तरह से ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है जहाँ पर दोनों इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 की लाइन, उसकी भी लाइन यही हो। फर्स्ट इक्वेशन की लाइन भी यही हो सकती है और सेकेंड इक्वेशन के रिप्रेजेंटिंग लाइन भी यही हो सकती है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ हमने पढ़ा कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, वी टेक 2 equations together and the graph of a linear equation in 2 variables is a straight line, and here we are taking 2 equations together, so we are having 2 lines and we have discussed the 3 possibilities. This is all in today's class. We will be doing examples based on all this in our next class. Till then, goodbye.